تو ہمارے ہندو بھائی جو سناتن دھرمی ہے ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی نبی بھیجا ہوگا. اور یہ ذہن نشین کرنے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا ہوگا. یہ ڈائریکٹ ہم اور آپ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ہی بھیجا، بلکہ یہ دماغوں میں خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. دیکھیے کیسے نوح علیہ السلام کے قوم کے درمیان کچھ اننے کے صالح بزرگ آدمی تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا، جب ان کی فوت ہو گئی، شیطان نے آ کر نوح علیہ السلام کے قوموں کو، نوح علیہ السلام کے لوگوں کو یہ ان کے دماغوں میں یہ بات ڈالنا شروع کر دیا، اے نوح علیہ السلام کے قوم، تمہارے درمیان جو بزرگ تھے، نیک اور صالح آدمی تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے. ان کے انتقال جب ہو گیا ہے تو تم اب کیا مانو گے؟ تمہیں کیسے ان کے بارے میں پتہ چلے گا؟ تم ان کو کیسے یاد کر سکتے ہو؟ شیطان نے ان کے دماغوں میں، ان کے کھوپڑی میں یہ بات ڈال دی کہ تم ایک کام کرو، ان کی مجسمے بنا لو، تم ان کی تصویر بنا لو، تم ان کی صورت بنا لو اور اس کو اپنے گھروں میں رکھو اور یاد کرو کہ یہ ہمارے قوم کے درمیان اچھے بزرگ انسان تھے، صالح انسان تھے. شیطان نے ان کے دماغوں میں یہ بات ڈال دیے. نوح علیہ السلام کے قوم نے کہا ہم کیسے مجسمے بنا سکتے ہیں؟ شیطان نے راستہ بتایا کہ آپ ایک کام کیجئے، پہاڑوں کو کاٹیے، پتھروں کو کاٹیے اور ان کی شکل بنائیے، انہی جیسا شکل بنائیے اور آپ ان کی عبادت کیجئے. میرے بھائیوں، اسی طرح شیطان نے ان کو یاد دلانے کے لیے یہ دماغ دے دیا، یہ شاطرانہ چال ان کو سکھا دیے اور ان کے قوم کے اور امتی کے لوگوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر، پتھروں کو کاٹ کر مورتیاں بنانا شروع کر دیے. میرے بھائیوں، ان صالح اور بزرگوں کی، ان صالح اور بزرگ انسان کی تصویر بنانا شروع کر دیے اور ان کو اپنے گھروں میں رکھ دیے. شیطان نے پھر ان کے دماغوں میں یہ بات ڈال دی، اچھا ایک کام کرو، تم صحیح سے اگر ان کو یاد کرنا چاہتے ہو تو تم ان کی عبادت کرنے لگو، تم ان کو ماننے لگو، ان کو پوجنے لگو. اور ویسا ہی کیا کہ انہوں نے اتنا تجاوز کیا، اتنا گلو کیا کہ ان کو یاد کرنے کے لیے بنایا، لیکن ان کو ان کی عبادت بھی کرنا شروع کر دیا، ان مورتیوں کی عبادت بھی کرنا شروع کر دیا. میرے بھائیوں، پتہ چلتا ہے یہ جو مورتیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے ہوا ہے. وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ ہیں اور ان کی امت یہ جو مورتیوں کا پوجنا ان کا سلسلہ شروع کیا ہے. میرے بھائیوں، اگر آج آپ ان سے سوال کریں کہ یہ کیا آپ کا حقیقی خدا ہے تو ضرور آپ سے کہیں گے کہ نہیں، یہ حقیقی خدا نہیں ہے، لیکن ہاں اللہ کو یاد کرنے کے لیے ان کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں. وہ بھی نہیں کہیں گے کہ یہ اصل معبود ہے. تو انہوں نے بھی ایسا کام انجام دیا اور وہیں سے مورتی کی پوجا شروع ہوئی. ہمارے مسلمان بھائیوں کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ پیشن گوئی کی، اے میری امتیوں، بنی اسرائیل جس طرح 73 فرقوں میں بٹے تھے، میری امت 72 فرقوں میں بٹے تھے، میری امت بھی 73 فرقوں میں بٹیں گے اور ایک فرقہ جنتی ہوں گے، باقی 72 فرقہ جہنمی ہوں گے. تو کچھ فرقے ایسے بھی ہیں جو بالکل اسی ٹائپ کے اور اسی جیسا کھوپڑی اور عقل لے کر کام کرتے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ان کو مانتے نہیں ہیں، ہم ان سے بیٹا بیٹی مانگتے نہیں ہیں، بلکہ ہم ان سے فریاد کرتے ہیں. یہ سفارش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ان کا بھی ڈائریکٹ یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ ڈائریکٹ ہم کو دیتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی آپ مجھے تھوڑی سی نصیحت کر دیجئے، مختصر سا نصیحت کر دیجئے. اللہ کے نبی نصیحت کر رہے ہیں، اے آدمی سنو، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے، جب بھی کوئی چیز مانگنا ہو تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا. اذا سألت، جب مانگنا ہو تو ڈائریکٹ، فاسأل اللہ، ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا. اور جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے مدد کی، اذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب بھی مدد کی ضرورت پڑے تو میں استعنت فاستعن باللہ، تو ڈائریکٹ اللہ سے مدد طلب کرنا، کوئی بیچ میں وسیلہ نہیں، کوئی سیڑھی نہیں. تو ایک حساب سے دیکھا جائے کہ سب نے اپنے دھرموں کے اندر بگاڑا
बिगाड़ पैदा किया है और इस चीज से कोई महफूज है ही नहीं। श्री कृष्ण जी ने तो यही कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारत, जब जब धर्म के अंदर गिलानी होंगे, जब जब धर्म के अंदर लोग बिगाड़ पैदा करेंगे तो अधर्मी लोग तरक्की करेंगे, हर धर्मी करने पर आदर धर्म के लोग तरक्की करेंगे। धर्म के अंदर जब बिगाड़ पैदा होगा, धर्म परिवर्तन जब करेंगे तो लोग अधर्मी जो लोग हैं वो तरक्की करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, सबने अपने धर्म के अंदर बिगाड़ पैदा किया है। मैं बता रहा था कि तौहीद, रुबूबियत में कोई झमाला नहीं, कोई झगड़ा नहीं, और अस्मा व सिफात को मानने पर इसमें भी कोई ऐतराज नहीं, लेकिन उलूहियत को मानने में झगड़ा शुरू हुआ है। अब अगर हम और आप तौहीद को कैसे समझ सकते हैं? तौहीद का माना होता है कि अल्लाह ताला को डायरेक्ट एक मानना, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना। जब हम और आप तौहीद को मानेंगे तो अल्लाह ताला के अस्मा व सिफात पर ईमान ले आना है, तौहीद रुबूबियत पर ईमान लाना है। अल्लाह ताला के अस्मा व सिफात, जैसे अल्लाह ताला इंसान के मिसल नहीं है, इंसान के दुनिया के अंदर कोई चीज ऐसी नहीं है जो अल्लाह ताला की मिसाल रखते हैं। लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह ताला की मिसाल कोई चीज है ही नहीं, उनके मिसाल यानी उनके जैसा कोई नहीं है। हाँ, आगे अल्लाह ताला ने उसी आयत में वो समीउल बसीर कहा गया है कि वो सुनने वाला है, देखने वाला है, लेकिन कैसा देखने वाला है, कैसा सुनने वाला है, हम और आप अपने से उसको कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, हम और आप उसको हमारी जैसा नहीं बता सकते। मेरे प्यारे साथियों, इसी को अल्लाह ताला फरमाता है कि मुख्तलिफ मज़ाहिबों में मेरी मिसालें मिलेंगी, मुख्तलिफ मज़ाहिबों में मेरे कौल मिलेंगे, मुख्तलिफ मज़ाहिब में मेरी अलामतें मिलेंगी। जिस तरह के इसी को कहा गया है कि नतस ये प्रतिमा अस, उसका कोई फोटोग्राफ नहीं, उसकी कोई छवि नहीं, उसकी कोई मूर्ति नहीं। बताइए ये आयत और वेद दलालत करते हैं कि नहीं कि लैसा कमिस्लिही शैउन, उसकी मिसाल कोई नहीं है, उस जैसा आदमी कोई नहीं है, उस जैसा इंसान कोई, उस जैसे यानी सिफात में, आसमा व सिफात में कोई है ही नहीं। ये मंत्र उस पर दलालत करते ही कि नहीं है। अल्लाह ताला के आसमा व सिफात को गिनिए। अल्लाह ताला कह रहा है सूरह इखलास के अंदर कि कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ लोगो, ऐ मेरे, अल्लाह ताला मोहम्मद से कह रहा है, मोहम्मद अपने उम्मतियों से कह दीजिए कि अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला एक है। एकम ब्रह्मदित्यो नास्ति निह्नायस्ति नास्ति नास्ति किंचन, वो ईश्वर एक है, दूसरा नहीं, जरा सा भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आयत और वेद इस बात पर दलालत करती है कि नहीं, इस बात पर मिलते जुलते ही या नहीं कि अल्लाह ताला की ज़ात एक है, अल्लाह ताला की ज़ात है, एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है कि लम यलिद व लम यूलद, ये सूरह इखलास की आयत आखिरी आयत में कह रहे हैं कि आखिरी आयत के सेकंड लास्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला किसी औरत से जना नहीं है, किसी मर्द से जना नहीं है, यानी उसका कोई बाप नहीं है और उसका ना ही उसके कोई माँ है। इसी को वेदों में कहा गया, न कास ये कस्कीजा जनेता न कदीपा, वो ईश्वर ऐसा है जिसके बराबर कोई नहीं है, यानी उसका ना कोई माँ है और ना उसका कोई बाप, वो किसी से पैदा ही नहीं हुआ है और ना ही उससे कोई पैदा हुआ है। वो जात तो तमाम चीजों से बरी है, वो जात तो तमाम अयूब और नकाइस से पाक है, वो जात तो तमाम अयूब और नकाइस से पाक है, दुनिया में उसकी मिसाल कोई है ही नहीं। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला की सिफात ये बयान कर रहे हैं। जिस तरह सूरह फातिहा पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है, उसी को ने महावसी, वो बहुत बड़ा महान है, यानी अर्रहमानिर रहीम। सारी चीज खुलासा बिल्कुल अल्लाह ताला की जात और सिफात आपको हर धर्म के अंदर कुछ ना कुछ मिलेंगे। जिस तरह हम और आप कुरान में पढ़ते इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसी को वेदों में कहा गया क्या गिने नया सुपता रहे आसमा विश्वानी देव यूनान ब्यूदान, ऐ ईश्वर तू हमें सीधे पथ की तरफ चला, ऐ ईश्वर तू हमें सीधे मार्ग की तरफ चला और ना उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने गजब नाजिल किया है,
जब इब्राहीम ने अपने औलायाल से कहा था वजनुबनी या बनी अंता बुदल असनाम, ऐ मेरे बेटों शिर्क मूर्तियों की पूजा मत करो, बुतों की पूजा मत करो, उसी को अल्लाह ताला ने वेदों में ये किसी न किसी शक्ल में उसमें लिख डाले हैं और आज भी ये लफ्ज मौजूद है। अंधात्मा परविशांति अशंभूति मुपस्ते, यानी जो भी शख्स अल्लाह को छोड़कर प्राकृतिक चीज यानी अल्लाह ताला का बनाई हुई चीज, जिसको हम और आप कुदरती चीज कह सकते हैं, जैसे आसमान और जमीन, चांद और सूरज को पूजते हैं, वो सरासर कुफ्र में सरासर गुनहगार है। जो शख्स यानी प्राकृतिक चीजों को पूजते हैं, चांद और सूरज पेड़ पौधों को पूजते हैं, अल्लाह के डायरेक्ट बनाए हुए चीजों को पूजते हैं, वो शख्स गुनहगार है। और वेदों के अल्फाज दूसरे मंत्रों में भी कहा है, दूसरे मंत्रों में कहा है कि जो संसारिक चीजों को पूजते हैं, जैसे इंसान अपने हाथ से पत्थर बनाता है और पत्थर को काट कर मूर्ति बनाते हैं, मेरे प्यारे साथियों, इंसान अपने हाथ से जो चीजें बनाते हैं, टेबल वगैरह बनाते हैं, कुर्सियां वगैरह बनाते हैं, इंसान अपने हाथों से जो भी चीज बनाते हैं, इन तमाम चीजों को पूजने वाला गुनहगार है, ये वेदों में कह रहे हैं। लेकिन हमें तो किसी से उलझना नहीं है, हम आपको सिर्फ आपके लिए बता रहे हैं, दूसरों को नसीहत नहीं कर रहे हैं। आप समझिए कि अल्लाह ताला का वजूद दूसरे धर्मों से मिलता है कि नहीं है। मेरे भाइयों, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला पर पूरा एतमाद नहीं है। लोगों, अल्लाह ताला पर एतमाद करना जरूरी है। अल्लाह ताला ने कहा वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम इंसान खसारे में इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। अल्लाह ताला हर पे मुस्तस्ना इल्ला लाकर चार किस्म के लोगों को अलग कर दिया है। जो लोग अल्लाह ताला की जात पर यकीन रखते हैं और अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं और सब्र की तलकीन करते, हक पर जमे रहते हैं। यानी सबसे पहले जो आपका काम आया है वो आमनू का लफ्ज कुरान में मौजूद है, आमनू का लफ्ज हदीसों में मौजूद है। सबसे पहले आप पर यह जिम्मेदारी है कि आप अल्लाह ताला पर यकीन रखें। आपको चाहिए धूप, अल्लाह ताला ने बारिश बरसा दी, ओ अल्लाह को क्या दिमाग अल्लाह ताला नहीं देख पाता है? अल्लाह ताला को अकल है, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह ताला इंसानों को आजमाता है, कभी औलाद छीन कर, कभी खेतों में नुकसान कर गए। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला पर पहले भरोसा कीजिए, अल्लाह ताला की जात पर पहले आप यकीन रखिए, उसके बाद कोई अमल आपको काम में आएगा। अब ये तौहीद की मुख्तसर सी तारीफ हुई। अब आते हैं शिर्क क्या है। अल्लाह ताला को छोड़कर किसी को भी मानना, अल्लाह ताला की इबादत में किसी को भी शरीक करना। आप डायरेक्ट और ज़ाहिरी तौर पर जो इबादत करते हैं अल्लाह को छोड़कर, आप उन्हीं को मुशरिक समझते हैं, आप उन्हीं को शिर्क से ताबीर करते हैं। लेकिन नहीं, आपके अंदर भी कुछ शिर्क के अल्फाज और शिर्की अल्फाज और शिर्की आमाल भरे हुए हैं। मैं इन तमाम बातों को बताने के लिए आया हूँ मेरे भाइयों। शिर्क करने वालों को मुशरिक कहा गया है। जो शख्स अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरों को मानते उसको मुशरिक कहा गया है। और जब भी शिर्क की तारीफ आप करेंगे, उसमें कुरान की एक आयत है जो सारे लोग मुकर्रिर हजरात और समझाने वाले मुफस्सिरीन किराम ने जब शिर्क का उन्वान शुरू किया है, कोई राइटर अगर शिर्क के मौजू के तहत अगर बात कोई लिखी है, कोई मजमुआ जमा किया है, तो सबसे पहले लुकमान की उस अपने बेटे को जो नसीहत की उस आयत को नकल किया है कि जब लुकमान ने अपने बेटे से कहा या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे अल्लाह के साथ शिर्क मत करना। क्यों? इसलिए कि इन्ना शिर्क लजुल्म अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। और इसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों के अंदर भी बयान फरमाया कि 7 हलाक करने वाले गुनाहों से बचो। उनमें सबसे पहले जो आपने गुनाह बताया, सबसे पहला जो गुनाह आपने बताया वो गुनाह है अश्शिर्क बिल्लाह, अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना है। अब शिर्क को क्यों इतना बड़ा गुनाह करार दिया? शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। इन्ना शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है।
बहुत बड़े बड़े गुनाहों में और भी बहुत सारे किस्म के गुनाह है, चोरी करना, जिना करना, डकैती करना, लूटमाट करना, किसी को कत्ल करना, जबरदस्ती किसी का माल चुराना, हड़पना, किसी की जमीन व जायदाद पर जबरदस्ती कब्जा कर लेना, अपनी ताकत का दूसरे पर इस्तेमाल करना, अपनी ताकत का गलत मिसयूज करना। मेरे भाइयों, लेकिन अल्लाह ताला ने शिर्क को यहाँ सबसे पहले क्यों बयान किया? अल्लाह ताला कुरान की दूसरी आयत में नक्शा खींचता है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अय्युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। ऐ लोगों, मैं अगर चाहूं तो अपने रहमो करम से तुम्हारे बाकी गुनाहों को माफ कर दूंगा, मैं माफ कर सकता हूं, लेकिन शिर्क को माफ नहीं कर सकता हूं। यहाँ एक बात ये नोट कर लीजिए, अल्लाह चाहे तो अपने रहमो करम से तुम्हारी चोरी, तुम्हारी डकैती, तुम्हारी सीना चोरी को माफ कर सकता है, लेकिन आप कहेंगे हम डकैती भी करेंगे, चोरी भी करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, हम अपनी माँ बख्शिश तलब कर लेंगे, हम अपने आप की बख्शिश करा लेंगे, हम रोज़ा रखेंगे, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब कर लेंगे, अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। लेकिन नहीं, ऐ इंसानों, अल्लाह तो कह रहा है कि मैं अपने रहमो करम से माफ़ कर सकता हूँ, तुम्हारे नमाज पढ़ने के बदौलत माफ़ नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारे रोज़े रखने के बदौलत माफ़ नहीं कर सकता हूँ। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ शिर्क को बहुत बड़ा जुल्म कहा गया है, शिर्क को बहुत बड़ा जुल्म करार दिया है कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। आप दुनिया भी मिसाल ले लीजिए, हम में से बहुत लोग हैं कि आका बने हैं, मालिक बने, और हमारे घर में कोई मालिक या कोई गुलाम काम कर रहा है, हमारे घर में कोई गुलाम काम कर रहा है, आप उसको मजदूरी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इतना इतना फला काम करना, इतना काम करना, लेकिन वो गुलाम अगर आपका काम ना करे और दूसरों के काम करें और आपके घर में रहे, आपके बिस्तर पर सोए, आपके चटाई पर बैठे और आपसे ही जुर्माना वसूल करें, आपसे अपना वसूल और तनख्वाह ले, तो क्या आप उसको बख्शेंगे? आप जब एक बंदा को नहीं बख्श सकते हैं तो अल्लाह ताला कैसे बख्श सकता है, जबकि उसने सारी दुनिया का पालनहार है, आसमान और जमीन का रचनेता और रचनेकार है। मेरे भाइयों, उस अल्लाह को कैसे बर्दाश्त होंगे? तो अल्लाह ताला ने यहाँ शिर्क को बहुत बड़ा जुल्म करार दिया है। और एक बात सुनिए, जो भी ज्यादा माबूदों को मानते हैं और ज्यादा लोगों को शिर्क की अमाल और शिर्क के अल्फाज से उनके गुनाहों में डूब जाते हैं, उनका अंजाम क्या होगा जानते हैं? हम और आप ये सवाल कर सकते हैं कि एक ही अल्लाह क्यों है? दो तीन अल्लाह होते, हमारे पास एक कुर्ता आता है, दो कुर्ता आ जाता, हमारे पास एक बहुत बड़ा महल है, दो अल्लाह होते तो हमारे पास दो महल होते। बहुत लोग सवाल कर सकते कि अल्लाह ताला एक ही क्यों है? तो अल्लाह ताला एक है, इसका मतलब ये है कि अगर दो अल्लाह होते, तीन अल्लाह होते, अगर फसिया वालों को किसी दिन धूप की जरूरत पड़े और रानी पत्रा के लोगों को बारिश की जरूरत पड़े, रानी पत्रा वाले भी चाह रहे कि अल्लाह बारिश बरसा दे और फसिया वाले चाह रहे कि अल्लाह धूप नाजिल कर, धूप बरसा, तो अल्लाह ताला क्या नाजिल करते? दो अल्लाह अगर होते तो कहते कि नहीं, आज मैं फसिया वालों की बात सुनूंगा, बारिश बरसाऊंगा, और दूसरा अल्लाह कहते नहीं, आज मैं तो रानी पत्रा की बात सुनूंगा, क्योंकि रानी पत्रा भी बहुत दिन से धूप की तलब में है, और वो दूसरा अल्लाह कहते नहीं, फसिया वाले बारिश की तलब करते हैं। तो अल्लाह के दरमियान झगड़ा होता, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे प्यारे साथियों, और मैं आपको एक बहुत बड़ा दिलचस्प वाक़या सुना रहा हूँ। मनुस्मृति के अंदर ये वाक़या लिखा हुआ है। किसी ज़माने में तीन आदमी सफ़र कर रहे थे, किसी दरिया का या नदी वगैरह समंदर का। उसमें एक मुसलमान था और एक ईसाई थे, और एक हमारे हिंदू भाई सनातन धर्मी हो या आर्यतन धर्मी हो, जो भी हो, सफ़र कर रहे हैं। ऐसा हुआ कि कश्ती बीच नाव में डूबने लगी, कश्ती बीच दरिया में डूबने लगी। जो मुसलमान उस पर सवार था उसने अल्लाह से कहा, अल्लाह अस्मल्लाम संकट मोचन, ये अल्लाह तुम्हें हमें इस मुसीबत से बचा ले। मुसलमान को बचा लिया गया। जो ईसाई थे वो ये सवाल किया अल्लाह से कि वो माय गॉड प्लीज हेल्प मी, आए इस बार तू मेरी मदद कर, तू मेरी हेल्प कर। ईसाई को भी उसके रब ने बचा लिया, अल्लाह को उसके रब ने बचाया नहीं, मुसलमान को उसके रब अल्लाह ने बचाया और ईसाई को भी उसके रब ने बचा लिया। लेकिन जो हमारे ज्यादा मूर्तियों को, ज्यादा माबूदों को मानने वाले भाई थे, उसने आवाज लगाई कि ब्रह्मा ब्रह्मा मुझे बचा ले।
ब्रह्मा बचाने के लिए आ रहे थे। इतने में ऐसा हुआ इसने ब्रह्मा का नाम लेना छोड़ दिया और विष्णु विष्णु कहना शुरू किया। और जैसे विष्णु विष्णु कहना शुरू किया वो विष्णु बचाने के लिए आए और इतने में ये विष्णु का नाम लेना छोड़ दिया और ये चिल्लाना शुरू किया, है शंकर मुझे बचा ले, है शंकर मुझे बचा ले। शंकर बचाने के लिए आ ही रहे थे, इसने राम जी का नाम लेना शुरू कर दिया, है राम जी मुझे आप बचा लीजिए। राम जी उसको बचाने के लिए आ ही रहे थे, फिर इसने राम का नाम छोड़ा और सीता जी कहना शुरू कर दिया। और जैसे सीता जी कहना शुरू किया इतने में वो आदमी जमीन के अंदर गर्क हो गए और डूब गए, नदी में डूब गए। उनकी किताबों में लिखा है कि पुनर्जन्म हमारे यहाँ भी है, लेकिन कुछ हम लोग मुख्तलिफ दूसरे कायदे से मानते हैं कि हम लोगों को अल्लाह ताला जिंदा करेगा और हिसाब व किताब लेगा और अल्लाह ताला इंसान को इंसान के शक्ल में ही पैदा करेगा, जिंदा करेगा। लेकिन उन लोगों के दरमियान ये बात लिखी हुई है कि जो शख्स अच्छा आमाल किए होंगे, दुनिया में नेक अमाल किए होंगे, उनको इंसान का जन्म मिलेगा। बाकी लोगों को जो जैसा अमल करेगा कोई कुत्ता बनेगा। खत्म। मेरे भाइयों यही वाक़या ख़त्म करके मैं तकरीर ख़त्म करूँगा। तो मेरे प्यारे साथी उस आदमी को पुनर्जन्म मिल गया, वो इंसान के रूप में सारे देवी देवता जमा हो गए कि तुमने दुनिया में अच्छा अमाल किए थे, क्या हुआ? उस गए कैसे मजाक बनाने आ गए। मुसलमान को उसके रब ने बचाया, ईसाई को उसके रब ने बचाया, और आप मेरे इतने माबूद 33 कोटि देवी देवता होने के बावजूद आपने मेरी जान नहीं बचा पाई। ब्रह्मा जी कहने लगे आपने मेरा नाम लिया, मैं बचाने के लिए आ ही रहा था, लेकिन आपने विष्णु का नाम लेना शुरू कर दिया। तो मैं सोचा जब तुमने मेरा नाम लेना ही छोड़ दिया मैं कैसे बचाऊं। विष्णु जी आपने क्यों नहीं बचाया? विष्णु कहने लगे मैं बचाने के लिए आ ही रहा था, फिर विष्णु का नाम लेना छोड़ दिया और राम जी कहने लगे, शंकर जी कहने लगे। आखिर में सीता जी का नाम आया, ऐ सीता जी आपने क्यों नहीं बचाया? सीता कह रहे मैं नारी तू नर, मैं स्त्री तू पुरुष, मैं तुम्हारे जिस्म में कैसे हाथ लगा सकती हूँ। इसलिए मैंने कुछ टाइम लगाया कि मैं अपने बाल कटा रही थी, मर्दाना लिबास पहन रही थी, जनाना चोला उतार रही थी, औरत की भेष मैं बदल रही थी और मर्दाना भेष पहन रही थी, बाल कटा कर मर्दाना शक्ल इख्तियार कर रही थी। इतने में ऐसा हुआ कि तू डूब के मर गया, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तो मेरे भाइयों टाइम खत्म हो गया, इंशाअल्लाह आगे हयात बाकी, मुलाकात बाकी। प्रोग्राम में अगर कहीं हो तो आपसे मेरी मुलाकात हो। अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करूंगा, ये अल्लाह ताला हम सब तमाम मुसलमानों को शिर्क और तौहीद को समझने की तौफीक इनायत बख्शे, हमें सीधे और पथ पर चलने की तौफीक और अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। আপনারা জিম্মেদারিটা হোটেলে এখনো ব্যবস্থা কমে আছে, গোল পয়সা আছে, খানা খাওয়ার পয়সা আছে, আপনাদের কমিটির কাছে হোটেলের মধ্যে যে কবুল করা হয়েছে এরা তাকে জিম্মেদারি যেটা দেওয়া হয়েছে। আপনারা অনেকে হচ্ছে আমাদের হোটেলে পৌঁছেন, মানুষ যারাকে খিদে লেগে আছে, ভোক লেগে আছে, ওরা খাইতে লেগে আপনারা ইন্তজার করছেন, আপনারা আপনাদের মাজারে বাড়িতে কোনো সাথে আপনারা টাইম ব্যস্ত করছেন। এরকম যদি করেন তো আপনার মকসদ যেটা যে মকসদ